All right. Just give me a second. All right. So I'll turn on the screen now. I'm hopeful you can see my screen as well. For the purpose of viewing, right? Since you guys are going to see the screen and everything, so I can turn off my camera so that you can see it clearly, because there would be two screen at on your screen. So will that be okay, or do you want me to turn on the camera? It's up to you to decide. Because I think there would be a little issue while you'll be viewing me. All right. So any which ways, we're going to start the class now. So guys, this particular demo, we have many scenarios to discuss. The first thing that we'd like you to know is about us, we as a company. What is your belief? What is our mission? So we as a company is called Digi Pathshala, and it's a new initiative. But the people who are the founding members, they have a lot of experience with respect to driving the digital marketing zones, because the people who are involved, they are pioneers in digital marketing. They have helped uh, companies like DSIM and other companies to become a kind of a big name in the market. So those people have started this initiative where the focus is to provide the right knowledge and the right approach, which is missing in certain part of the industry, so that an individual who is working at home, who's going to work from home or going to go to the office, would be able to attain a good digital marketing knowledge so that they can start their career once this pandemic is over, or within this pandemic itself they can start learning, uh, and they can start earning as well with respect to the different kind of freelancing gigs, or there are different models in digital marketing using which you can earn while you're sitting at home. So that is the focus, that's going to be the focus of today's demo. All right, so the company name is Digi Pathshala, right? And the program that we are going to discuss today is called Digital Marketing Advanced Mastery Program. So this is the program that we have to present to you, Digital Marketing Mastery Program. So it's a unified digital marketing course with all the advanced knowledge that is that is lacked in other institutes which are providing this kind of course. So our course has a unique blend of practical approach as well as theoretical approach. So I also have a digital marketing setup. I consult many brands in digital marketing. Uh, I work with agencies as well. Currently, I'm working with two agencies. One is from London and one is from India. So my job is to provide the digital marketing setup, and my job is to make sure that the digital marketing setup runs without a issue. So I design strategies for them, I execute campaigns, not by myself, their team executes it, but I am the one who's going to maintain the execution part of the team. I define job roles as well. So one of the problems that, and I've been doing it for quite a long time, I've been consulting in different brands and agencies for last 4 years, 5 years now. So there is one basic problem that I came across a lot, which is basically there are people who are doing digital marketing who have done a course from a reputed institute, but once it comes to practical application, they don't have any knowledge. Right? Okay. Before I move ahead, I'd like to ask you. So I've been speaking in English, right? क्या हमें इंग्लिश में ही बात करनी है? कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है? बिकॉज मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ और मैं मिक्सअप भी कर सकता हूँ. तो यू कैन लेट मी नो कि क्या हिंदी में ही बात करनी है या इंग्लिश में भी. यहाँ पे आप टाइप करके अपना वोट दे सकते हैं. आई लाइक टू सी दैट. इज इंग्लिश ओके या मैं हिंदी में बोलूं? किसी को लगता है सर आप हिंदी में बात करेंगे तो सही रहेगा? अच्छा, वॉइस इज ब्रेकिंग. वॉइस क्लियर है? इज क्लियर नाउ कोमल? द वॉइस इज क्लियर नाउ कोमल and everyone else, can you please reply? वॉइस इज नॉट ब्रेकिंग. ओके. क्या मैं हिंदी में बात करूं या फिर मैं इंग्लिश में ही करूं या फिर मैं मिक्सअप कर सकता हूं? व्हाट डू यू से? सी या. Okay, it's clear now. All right. So
मुझे हिंदी में बात करनी है, आई कैन मिक्स इट अप राइट, ओके चलेगा, इंग्लिश भी होता है हिंदी भी हो रहा है, डन। एवरीवन, भूपेंद्र एंड संदीप, कोमल, निकिता, ऑल कूल? सॉरी सर, नेटवर्क इशू है। इट्स ओके, नो इशू नो इशू, मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों बात करता हूँ, थैंक यू सो मच, लेट्स मूव अहेड नाउ। ऑलराइट, सो गाइस, एज यू कैन अंडरस्टैंड, जो मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रहा था वो ये था कि बेसिकली जब मैं इन कंपनीज को कंसल्ट करता हूँ और मैं वहाँ पे काम करने वाले लोगों को देखता हूँ, सो उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, यार फेसबुक में ऐसे ऐड चलेगा, फेसबुक में ये होगा, फेसबुक में वो होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है तो दे आर कैसे होगा, राइट? सो मेरा इंस्टीट्यूट के लाइन में आने का ताकि अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं लोगों की हेल्प कर सकूं ताकि वो प्रैक्टिकल अप्रोच, बिकॉज जो आप लोग एक इंस्टीट्यूट में जैसे कि हमारा है या बाकी सारे हैं, जब आप उसमें कोई चीज को सीखते हो तो जो फोकस होता है वो प्रैक्टिकल पे कम होता है और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाने पे ज्यादा होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे मैं जिस लेवल पे काम करता हूँ, मेरा काम प्लानिंग का है। प्लानिंग का काम क्या होता है, मैं एक छोटा सा डेमो देता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी जो है वो कोई नया प्रोडक्ट निकालती है, जैसे अमूल की बात कर रहे थे, अमूल आपको पता है मिल्क प्रोडक्ट्स निकालता है, दे सेल पैकेज दूध, दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं और बहुत सारे आइटम्स बेचते हैं। सो मान लीजिए अमूल जैसी एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट लेके आ रही है, समथिंग लाइक लाइक मीठा छाछ और समथिंग राइट। तो जब वो इतने बड़े लेवल पे वो इतने बड़े लेवल की कंपनी या फिर हिंदुस्तान लीवर एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है, एक मेरे ख्याल से एक स्किन क्रीम है जो बहुत ही इफेक्टिव है और समथिंग, कोई बड़ा प्रोडक्ट जब भी कोई कंपनी लॉन्च करती है या पतंजलि, तो जो उनका पूरा का पूरा प्लान बनता है मार्केटिंग का, वो जो प्लान का वर्थ होता है वो 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इतना वर्थ होता है। मेरा काम है उस प्लान को डिजाइन करना। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, मतलब मैं जो कंपनीज के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिन कंपनीज के लिए काम करता हूँ। सो अभी एक कंपनी है स्मार्ट वाइफ करके, राइट? तो वो लोग एक बहुत बड़े लेवल पे कैंपेन चलाते हैं, तो हम उसके लिए, मेरा काम है कैंपेन को डिजाइन करना, प्री लॉन्च क्या होगा, काउंटडाउन पोस्ट होंगे, लॉन्च के टाइम क्या होगा, पोस्ट लॉन्च पे जो इसका पूरा मार्केटिंग बजट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़। सो ये जो प्लानिंग का काम होता है, ये प्लानिंग का काम और ये कैसे होगा क्या होगा ये सब बनाने का, ये सब मैं डिलीवर करता हूँ, ये सब भी मेरा पोर्टफोलियो है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ तक लेवल पे पहुंचने के लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आजकल का इंस्टीट्यूट्स का कल्चर है खासकर डिजिटल मार्केटिंग में, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर अदर डोमेन, अदर पार्ट ऑफ स्टडीज, यू नो, बट डिजिटल मार्केटिंग में जो मैंने देखा है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो सो कॉल्ड सेटअप्स हैं, उनका फोकस रहता है कि ये जो चीजें, जो प्लानिंग वाली लेवल की चीज है, उसको हम लोग प्लानिंग पे समय एग्जीक्यूशन पे ना दिखाएं। जब तक आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि यार इसको हम लोग को करना कैसे। तो एक इंस्टीट्यूट यानी एक कोर्स का, जो हमारा कोर्स का यूनिक पॉइंट ये है कि आपको प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के बारे में तो प्लानिंग के बारे में तो बताया ही जाएगा, आपको एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकली भी सिखाया जाएगा, जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप जाओगे तो आपको डायरेक्टली प्लानिंग की जॉब नहीं मिलने वाली, पहले आपको एग्जीक्यूशन की जॉब मिलेगी। जब आप एग्जीक्यूशन करोगे 6 महीने, 1 साल, फिर आप धीरे धीरे प्लानिंग वाले लेवल पे आओगे एंड देन आप प्लान बनाना सीखोगे एंड देन प्लानिंग एग्जीक्यूशन दोनों हैंडल करोगे। तो आपकी अप्रोच वही रहनी चाहिए। अगर मैं ज्यादा फोकस सिर्फ आपको थ्योरेटिकल प्लानिंग सिखाऊंगा तो उसकी तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी डायरेक्टली, क्योंकि प्लानिंग वाला जो बंदा होता है उसको डायरेक्टली जॉब नहीं मिलता है, वो एक्सपीरियंस बंदे को ही वो जॉब मिलती है। आपको जो मिलेगा वो एग्जीक्यूशन का मिलेगा, आपको मिलेगा फेसबुक ऐड चलाने का जॉब। तो आपको फेसबुक ऐड चलाने का प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि यार आप ऐड के लिए प्लानिंग कैसे करते हैं। सो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए। प्लीज वाई टाइप करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आपको थोड़ा सा, वी हैव टू हैव इंटरैक्टिव सेशन बिकॉज दिस इज हाउ आई ट्रेन। तो यू हैव टू टाइप वाई, अभी तक क्लियर है? तो आई गेस बाकी लोग जो है इशिका एंड कोमल, आप लोग भी रिप्लाई दे सकते हैं। ऑलराइट, शुड आई मूव ऑन? तो 2 मिनट मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज द नीड ऑफ द आवर। ऑलराइट, so we'll talk about digital marketing for the time being.
इज देयर एनीबडी, आप में से कोई है तो मुझे थोड़ा सा ब्रीफ दे सकता है? आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो चाहो तो। 2 मिनट आप मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा समझा दें कि आपके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। एनीवन, आप टाइप भी कर सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। मुश्किल है? क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है और मैंने सबसे पहला सवाल ही ये पूछ लिया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। आप सोच रहे होंगे भाई हम तो ये पढ़ने आ रहे हैं और ये हमें से पूछ रहे हैं। ठीक है, आई गेस आपका पॉइंट भी अगर दिमाग में ये है तो फिर सही है। लेकिन एटलीस्ट आप मार्केटिंग तो मुझे बता सकते हैं कि आपके हिसाब से मार्केटिंग क्या होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग? क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है, आई गेस हम सबको पता है कि मार्केटिंग क्या होती है। सो प्लीज टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग? एनीवन? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इट हैज टू बी इंटरैक्टिव सेशन गाइस, तो थोड़ा सा आप पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, कोमल ने आंसर दे दिया, मार्केटिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए कोमल जी, आप मुझे ये बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग? टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट और बिजनेस। कूल। एनीबॉडी एल्स? व्हाट अबाउट इसका? आप कुछ आंसर दे सकते हैं? निकिता जी आप दे सकते हैं, भूपेंद्र आप दे सकते हैं। नो वन? ओके, अच्छा चलो एक एक सिंपल से सवाल का मेरे को जवाब देना है आपने, ठीक है? आईफोन का लेटेस्ट फोन कौन सा आने वाला है? आईफोन का लेटेस्ट कौन सा फोन आने वाला है? कोई भी बता दे। नहीं, आईफोन 11 तो मेरे ख्याल से चल रहा है ना। आने वाला कौन सा है? आईफोन 11। चलिए ये बता दो चल कौन सा रहा है? आईफोन 11 चल रहा है? हाँ ना? राइट, ओके। 12 आने वाला है, 11 चल रहा है। राइट, निकिता जी प्लीज पार्टिसिपेट करें, निकिता कौशिक एंड बाकी लोग। ऑलराइट, डन। आपको पता है लावा? लावा का नाम सुना है? लावा का लेटेस्ट फोन कौन सा है और कौन सा आने वाला है, क्या आपको पता है? विच इज द लेटेस्ट फोन ऑफ लावा? लावा का लेटेस्ट फोन कौन सा है? अरे लावा इज अ कंपनी, इट्स एन इंडियन इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। भूपेंद्र, राइट? आपको नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? देखिए प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा, ये भी एक मार्केटिंग टेक्निक है। पहले क्या होता था कि मार्केटिंग के अंदर सिर्फ जो है ना प्रोडक्ट को सेल करना होता था, लोगों को बताना होता था और प्रोडक्ट को सेल करना होता था। लेकिन आज के टाइम में मार्केटिंग की डेफिनेशन ही बदल गई है। राइट? क्या है मार्केटिंग की डेफिनेशन? आज के टाइम में मार्केटिंग जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है जिसको हम R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कि भाई प्रोडक्ट कौन सा बेचना है पहले इसकी रिसर्च की जाती है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मेरे पास आपके लिए। जैसे आजकल क्या हो गया, आजकल मैंने देखा है शहरों में, मतलब दिल्ली वगैरह में जो टियर 1 सिटी है हमारी, उसके अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है। लोग नॉर्मल पानी नहीं पीते हैं, फ्लेवर्ड वाटर पीते हैं। एप्पल का फ्लेवर, एक ब्लू हो करके कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनी है, पतंजलि ने भी मेरे ख्याल से फ्लेवर्ड वाटर निकाल दिया। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हम लोग पानी की बोतल लेते थे, वो 20 रुपए की पड़ती थी हमारे ख्याल, मेरे ख्याल से, है ना? 15 या 20 रुपए की एक बोतल आती है पानी की। उन्होंने क्या करा कि भाई 15-20 रुपए का सामान बेचेंगे, इससे अच्छा एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा एप्पल का स्वाद मिला देते हैं और अब हम इसको 40-50 रुपए में बेचेंगे। राइट? इसकी इसकी नीड नहीं थी, बट नीड जनरेट की है। राइट? आज के टाइम में एक और एग्जांपल मैं इसको दे सकता हूँ आपको। आपने आजकल देखे एप्पल के एयरपॉड्स चलते हैं, राइट? एयरपॉड्स आपने देखे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप, जो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, उनका कहना है कि एप्पल की पिछले 10 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है एयरपोर्ट्स को निकालना। तो हेडफोन तो हम पहले भी लगाते थे, किसी ने कहा कि काम करते हैं इसके तार काट देते हैं और इसको एयरपोर्ट्स बना देते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बेचना है, यानी उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट, ये भी मार्केटिंग टीम का पार्ट है। आपने बहुत बार एक एक जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो उसमें एक टर्म आती है, एक प्रोफाइल है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट मैनेजर। भैया क्या है? ये प्रोडक्ट मैनेजर है। राइट? जो प्रोडक्ट मैनेजर होता है ना, उसका काम ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये डिसाइड करना कि कौन सा प्रोडक्ट हमें बेचना चाहिए। प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, उसका काम ये होता है। जैसे हमारे डिजी पाठशाला में मेरा काम ट्रेनिंग एंड डिलीवरी को देखना, यानी ट्रेनिंग में क्या पढ़ाया जाए, डिलीवरी क्या हो, कैसे हो, दैट इज माय जॉब। सिमिलरली इस प्रोफाइल के लिए प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं कंपनी में, जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे को क्या बेचना है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है मार्केटिंग आज के टाइम।
फिर प्रोडक्शन में जाता है, प्रोडक्ट बनता है, देन उस प्रोडक्ट का अवेयरनेस होता है, अवेयरनेस यानी लोगों को बताया जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में, देन उस प्रोडक्ट का सेल होता है, एंड देन फाइनली होता है आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल। ये सारा का सारा जो पूरा पार्ट है ना, आज के टाइम में ये मार्केटिंग कहलाता है, आज के जमाने के हिसाब से। दिस इज व्हाट मार्केटिंग इज। प्रोडक्ट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, अवेयरनेस करना, लोगों को बताना, सेल करना, और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना। देखो, आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज Amazon और ऐसी जो कंपनीज है वो इसी के बलबूते इतनी बड़ी बनी, राइट? तो ये मार्केटिंग का पार्ट है। जब हम ये सारा का सारा काम करते हैं, सारा का सारा काम करते हैं यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस, क्या यूज करके? डिजिटल डिवाइसेस। कौन से डिजिटल डिवाइसेस? लाइक लैपटॉप और मोबाइल के द्वारा, वाया इंटरनेट के द्वारा, तो उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लोगों को कंफ्यूजन होती है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक रॉकेट साइंस है। नहीं, सेम चीजें हैं। जैसे हम लोग, जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल बाहर कोई कोई बिजनेस ओपन होता है तो वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करता है अपने, उसके लिए पहले वो न्यूज़पेपर में ऐड निकालता है, या बड़े बड़े होर्डिंग्स जो रोड के बाहर लगे होते हैं, या मैगजीन्स के जान जाता है, या पैम्पलेट्स छपवाता है। वही सारी टेक्निक्स हमको यहाँ पे करनी है। वहां पे रोड पे ऐड लगता था, यहाँ पे किसी वेबसाइट पे जाके ऐड लगाना है, राइट? तो वही सारी टेक्निक्स है जो नॉर्मल है। लोगों को हमेशा लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो मार्स से चल के आया है। नहीं, मार्स से नहीं आया है, यही का, ये पहले से ही था। लेकिन अब हम इसको डिजिटल डिवाइसेस की मदद से इंटरनेट के द्वारा करते हैं। तो ये जो सेम मार्केटिंग टेक्निक जब हम डिजिटल डिवाइसेस और इंटरनेट के द्वारा करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? समझ में आया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? प्लीज वाई टाइप करके मुझे बताएं। प्लीज टाइप वाई। सो आई गॉट 2 Y's। बाकी लोग भी हैं जो वाई, प्लीज वाई टाइप कर दे। कोमल, थैंक यू। भूपेंद्र आज, अच्छा भूपेंद्र का भी आ गया। इशिका, कोमल, निकिता जी का नहीं है। ऑल राइट, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो गाइस, जो डिजिटल मार्केटिंग का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, उसी पे हम लोग अब दोबारा आते हैं। सो ये हमारा करिकुलम है जो आपको पढ़ाया जाएगा। ये थोड़ा सा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। तो मैंने ऑलरेडी आपको हमारा विजन मिशन बता दिया है कि वी बिलीव कि एज एन इंडिविजुअल हमारे को ग्रोथ लेके आनी है, जो डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में आना चाहते हैं। नॉट ओनली थ्योरेटिकल ग्रोथ, नॉट ओनली प्लानिंग ग्रोथ, बट एग्जीक्यूशन ग्रोथ एज वेल। सो वी हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। और हमने इस कोर्स को डिजाइन करते हुए उसी चीज को हमने कंसिडर किया, राइट? आई जस्ट मूव अहेड, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। थोड़ा सा डेटा पुराना है। वी हैव टू Together, we have trained more than 8,000 people, and we have taken more than, I guess, 200 or 250 batches, right? राइट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस फील्ड में कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को क्यों चूज करें, डिजिटल मार्केटिंग हमें क्यों चूज करनी चाहिए आज के टाइम में। पहले मुझे एक बात बताइए, आप लोग जितने लोग अभी क्लास में हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया अबाउट यू, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को करके अपना बिजनेस खोलेंगे? वन टाइप कर सकते हैं, जो खुद का बिजनेस खोलेगा डिजिटल मार्केटिंग को सीख। एनीवन? ऑलराइट, कितने ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर जॉब करेंगे? वो 2 टाइप करें। नंबर 2, जॉब करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन डजंट मैटर, बट जॉब करेंगे। ओके, भूपेंद्र कह रहा है जी हमें तो जॉब करनी है, हम नहीं कर रहे अपना बिजनेस। ओके, कितने लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करके ऑनलाइन अर्न करेंगे, घर में बैठकर? वो जो ऐड आता है ना कि घर में बैठो कुछ भी मत करो और 50,000 रुपए महीने के कमाओ, वैसा कुछ करने का सोच रहे हैं। वो 3 टाइप करेंगे। 3। ओके, कोमल जी कह रहे हैं जी मुझे लगता है उसके अंदर कुछ सच्चाई है ना, तो मैं वही करूंगी जी। वेरी गुड। बाकी लोग? निकिता जी, जो जिन्होंने सोचा नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, वो 4 टाइप करें। चलो एक कैटेगरी और दे दी हमने, 4 टाइप कर सकते हैं, 4।
ओके, ईशिका जी का रिप्लाई नहीं आया। कोमल और भूपेंद्र के, भूपेंद्र जी हम जॉब करेंगे। कोमल जी कह रहे हैं जी मैं घर बैठे कुछ ना करके 4,000 रुपए वाला काम करूंगी, आई विल डू फ्रीलांसिंग। एंड व्हाट अबाउट ईशिका जी एंड निकिता जी? नो आइडिया। क्या सुन पा रहे हैं मुझे? कोई इशू तो नहीं है? ऑडिबल राइट? ओके, ईशिका जी कह रहे हैं जी अभी कोई आइडिया नहीं है, ये आइडिया लेने के लिए तो हम आपके पास आए, आप बताओ फिर हम सोचेंगे। गुड, नो इशू, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। सो प्लीज अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? देखिए, अगर अगर मान लें हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपसे 4 कैटेगरीज ली फिलहाल। कैटेगरी 1, वो लोग जो लोग बिगिनर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे भाई? वो लोग जॉब करेंगे। दूसरे लिए वो लोग जो लोग जॉब सीकर हैं, जिनको जॉब चाहिए, वो लोग भी क्या करेंगे भाई? वो भी जॉब करेंगे, राइट? बिगिनर में जॉब के साथ साथ बिजनेस भी हो सकता है, तो वो भी लिख देते हैं। तीसरे लोग वो हैं जो बिजनेस करेंगे, बिजनेस फ्रीलांसिंग करेंगे। ये 4 बेसिक कैटेगरीज हैं और आप में से मेरे ख्याल से चारों पांचों लोग इस कैटेगरी से, इनमें से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते। हो सकता है कि कोई दो, मैं जी जॉब भी करूंगा और फ्रीलांसिंग भी करूंगा, वो भी पॉसिबल है, ये अच्छी बात है। मल्टीटास्किंग इज गुड, आई गेस इज गुड फॉर एवरीवन, तो आपके लिए भी सही होगा। सो बात करते हैं पहले बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? जो स्टार्ट कर रहा है और जो इससे जॉब या बिजनेस से कुछ भी कर सकता है। मैं एक सिंपल सा फैक्ट समझाना चाहूंगा। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है ना? जो पहला फायदा है वो हम समझने की कोशिश करें। पहले मुझे एक बात बताओ, लेट्स सपोज जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम सिटिंग एट मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। So if I talk about right now, just give me a second. All right, क्या मैं दिख रहा हूँ? Done. So let's suppose मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग, हम लोग आपको रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है। ऑलराइट। सो मान लीजिए मैं मालवीय नगर रहता हूँ, तो मैं मालवीय नगर के पास एक जूते की दुकान खोलता हूँ, शूज की शॉप, राइट? जूते बेचने की दुकान। तो मेरा जूता कौन खरीद सकता है? हु कैन बाय माई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज? जूता कौन खरीद सकता है? वही खरीद सकता है जो मालवीय नगर के आसपास रहता है, राइट? तो अगर मैं अपने जूते की दुकान को ऑनलाइन लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ले जाने के बाद क्या होगा? ऑनलाइन ले जाने से कोई भी मेरा प्रोडक्ट खरीद सकता है, बैंगलोर से भी लोग ऑर्डर कर सकते हैं, राइट? तो डिजिटल मार्केटिंग का एक फायदा ये है कि अगर आप इसको डिजिटल मार्केट, अपने बिजनेस को डिजिटल में लेके जाते हो, तो आपको ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं मिलती। ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। दूसरा ये है कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव, राइट? आप 50 रुपए 100 रुपए में ऐड चलाकर टारगेट कर सकते हो पूरी दिल्ली को। ऐड उतने ज्यादा लोगों तक नहीं दिखेगा, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, बट आप टारगेट कर सकते हो। अगर मुझे न्यूज़पेपर या मेरे को किसी मैगजीन में ऐड देखना है, तो भी 30-40 लाख रुपए का खर्चा है वो एक दिन का, राइट? तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा बेनिफिट ये है, राइट? ये सारे के सारे जो मैं बेनिफिट डिस्कस कर रहा हूँ, ये डिस्कस कर रहा हूँ एज अ बिजनेस ओनर, राइट? तीसरा क्या है, इसकी हम लोग जिसको चाहे उसकी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एड जो है दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ वुमेन को दिखे, मान लीजिए मैं एक कॉस्मेटिक ब्रांड लाइक मेबेलिन है, मेबेलिन इज अ कॉस्मेटिक ब्रांड फॉर वुमेन प्राइमरली, राइट? तो मेबेलिन की एक काजल है उनका, वो काजल लेकर आए एंड मैं मेबेलिन का काजल सेल करना चाहता हूँ। तो ज्यादातर कौन खरीदेगा इसको? मैन या वुमेन? द राइट आंसर विल बी ऑब्वियसली वुमेन। तो मुझे उस एड को या मुझे उस प्रोडक्ट को ज्यादातर फीमेल्स को दिखाना चाहिए, राइट? तो मैं फेसबुक में टारगेट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरा एड जो है फीमेल्स को ही दिखे, राइट? सो वो टारगेटिंग पॉसिबल है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो है दैट इज एनालिसिस।
राइट। मैं अगर मान लीजिए मैं रोड पे ऐड दिखाता हूँ या मैं पैम्पलेट सेल करता हूँ या मैं न्यूज़पेपर दिखाता हूँ, क्या ये मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि कितने लोगों ने उससे प्रोडक्ट खरीदा? द राइट आंसर इज नो, वी कैन नॉट ट्राई। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो मैं 100% एक्यूरेसी से सारा की सारी चीजें ट्रैक कर सकता हूँ। तो ये सारे फैक्टर है कि कोई भी बिजनेस डिजिटल जाता है। अब अगर कोई भी बिजनेस डिजिटल जाता है, तो अगर आपका खुद का बिजनेस है, लेट्स सपोज आप बिजनेस ओनर हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में सारा का सारा सीखें कि कैसे मुझे वेबसाइट डिजाइन करनी है, किस तरीके से मुझे कॉस्ट इफेक्टिव एड्स चलाने हैं, कैसे उनकी टारगेटिंग करनी है, कैसे एनालिसिस करना है कि इस एड में इतने क्लिक्स आए तो उसका रिजल्ट मेरे बिजनेस पे क्या पड़ रहा है। वो सारी चीजें हम सीखेंगे। और अगर आप वो खुद सीखेंगे तो आप अपने बिजनेस को और अच्छी तरीके से मार्केट और मैनेज कर सकते हैं। तो बिजनेस ओनर के तौर पे क्या फायदा होगा आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए आप एक बिगिनर है या जॉब सीकर है, दोनों, वन और टू, तो आप किसी कंपनी में काम करेंगे जो ये करके देती है बिजनेसेस को, और अगर आपको ये अच्छे से आएगा तो आप अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। इससे जिस भी बिजनेस का प्रोडक्ट वो कंपनी प्रमोट कर रही है उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, वो आपकी सैलरी में रिफ्लेक्ट करेगा एंड यूल गेट गुड मनी फॉर इट, राइट। अब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग में क्या है, तो गाइस डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्स है मैं आपको दिखाता हूँ पहले कोर्स। ये हमारा कोर्स है, इसमें हमने दो मॉड्यूल्स रखे हैं, थोड़ा सा नीचे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये रहा एफिलिएट मार्केटिंग एंड एडसेंस ब्लॉगिंग। तो ये जो दो प्रोडक्ट है, सॉरी दो मॉड्यूल्स हैं, इन मॉड्यूल्स के अंदर आप ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग पैसे कमा सकते हैं प्रोडक्ट्स को स्नैप कर। डोंट वरी अबाउट इट। सो गाइस, एज अ फ्रीलांसर भी आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग जरूरी क्यों है। डिजिटल मार्केटिंग जरूरी क्यों है ये हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। Why? Because that's where we have to do the work eventually, right? यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, कुछ पूछना और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप बताएं। एनीवन? एनी क्वेश्चन सो फार? कुछ डिस्कस करना अभी तक? ऑल गुड? ऑल गुड, अभी तक सब कुछ ठीक? डन, ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। सो गाइज, हम जल्दी से एक बार मॉड्यूल्स पूरा कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे क्या होगा, और मैं आपको बता देता हूँ कि उस मॉड्यूल्स में आपको क्या सीखने को मिलेगा और उसका यूज कैसे होगा, राइट। तो ये हमारा पूरा कोर्स का प्रोसेस है, राइट। कोर्स स्टार्ट होगा जहाँ पे हम लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का लर्निंग सीखेंगे कि हमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। देन देन हमारा सेकेंड इज रियल टाइम लर्निंग कैसे होगी। थर्ड इज कि कोर्स के मॉड्यूल्स, जो मेन मॉड्यूल्स है जो कि गूगल एडवर्ड, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, ये होते हैं, ये हमें कैसे करना है। स्टेप 4 होगा जब हम मेन मॉड्यूल, क्योंकि जॉब आपको इसी कोर मॉड्यूल्स में मिलेगी, ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं। गूगल एड्स यानी एड चलाना सीखना गूगल के ऊपर, दूसरा सोशल मीडिया, तीसरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और चौथा आ, ये चौथा चौथा इज बेसिकली ईमेल मार्केटिंग भी है, बट ईमेल मार्केटिंग के साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो विच इज गोइंग टू बी गूगल एनालिटिक्स। तो ये सारे के सारे जो मॉड्यूल्स है जिसपे हमारे को जॉब मिलने वाली है, ये हमको यहाँ पे सीखना है, राइट। देन फिफ्थ में हम लोग मनी मेकिंग मॉड्यूल्स, फोर्थ में मनी मेकिंग मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन विल गेट सर्टिफिकेशन। इस कोर्स के दौरान मोर देन आपको 15 सर्टिफिकेशंस मिलेंगे फ्रॉम डिफरेंट वेज, और हमारा खुद का डिजी पाठशाला का सर्टिफिकेट भी आप लोगों को मिलेगा जो इंडस्ट्री रेनाउड है एंड आईएसओ सर्टिफिकेट है, राइट। सो अच्छा, जो प्राइमरली क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन बेसिस पे होंगी, राइट। यू कैन डू इट सिटिंग एट योर होम। देर आर क्लासेस के जो मॉड्यूल्स हैं वो संदीप आपको थोड़ा बेटर समझा देंगे, बट आई थिंक वीकेंड और वीकडे क्लासेस का प्लान है। स्टार्ट करते हैं। जो कोर मॉड्यूल है सबसे पहला, उसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसा आप जानते हैं, आई शो यू सर्टेन एग्जांपल्स, राइट। अगर हम गूगल पे जाते हैं और हम कुछ भी टाइप करते हैं, यू नो, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं व्हाट इज एसईओ, राइट। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज एसईओ, तो आप देख रहे हैं जब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे लिंक आ रहा है moz.com का, फिर सर्च इंजन लैंड का, नील पटेल का, दिस एंड दैट, यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं।
तो यहाँ पे जो लिंक्स ये आ रहे हैं ये ऑटोमेटिक अपने आप आ रहे हैं। इसके लिए जो प्रोसेस है जिसकी मदद से यहाँ पे आते हैं लिंक्स, उस प्रोसेस का नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग वो टेक्निक सीखेंगे जो इंडस्ट्री रिनॉर्ड है, जो इंडस्ट्री में फॉलो होती है, और जिसकी मदद से हम लोग अपनी वेबसाइट के रैंक को यहाँ पे ला सकते हैं। इस कोर्स के दौरान आपको इंडस्ट्री यूज जो सॉफ्टवेयर हैं उन पे काम कराया जाएगा। मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बता देता हूँ जो इसमें काम करते हैं। प्राइमरीली आपको लाइव प्रैक्टिकल में सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे जिसका कॉस्ट $99 से लेकर $900 तक का कॉस्ट है प्रोडक्ट का। एक जो कोर्स है जिसको आपको कराया जाएगा इसका नाम है सेमरश, ये इंडस्ट्री रिनाउंड टूल है, राइट। नेक्स्ट जो है उसका नाम है कॉमस्कोर, नीचे आपको सिखाया जाएगा, राइट। पेड टूल है। नेक्स्ट इज एचआरएफ्स, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है। सो मैं जो स्टूडेंट्स को क्लासेस कराता हूँ इसमें हम लोग इनको प्रैक्टिकली काम करना इस पे सिखाते हैं, क्योंकि आप किसी इंडस्ट्री में जाके काम करोगे ना, किसी क्लाइंट के लिए किसी कंपनी में काम करोगे, तो जब आपको उसकी स्टडी करनी है, राइट, क्या करनी है, स्टडी करनी है, तो आपको इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। मेरे को 1 मिनट लगेगा, मैं आपको एक बार इंटरफेस भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। 1 मिनट, होल्ड ऑन। मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा, 1 मिनट। राइट, मैं काम करता हूँ, मैं इसका फ्री वर्जन आपको दिखाता हूँ। जब आप ज्वाइन करेंगे देन आई विल शो यू द पेड वर्जन। All right. Okay. So if I talk about HRF, so you can see the pricing. So basically ये टूल क्या करता है, अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी कंपनी का करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट के लिए करना चाहते हैं, तो उस केस में ये आपकी हेल्प करेगा। यू हैव टू टेक द ट्रायल। सो ये सारे टूल्स पे आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से होता है। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं एसईओ के अंदर, राइट, कि एसईओ क्या होता है, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, कौन कौन से इसके मॉड्यूल्स काम करते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। सेब्रश का इस्तेमाल किया जाएगा, रैंक वॉच सिखाया जाएगा, एचआरएफ सिखाया जाएगा आपको, और प्लानर से सिखाया जाएगा। ये सारे के सारे टूल्स के आपको प्रैक्टिकली कराया जाएगा, और यही वो टूल हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं प्राइमरली, राइट। ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल 80% प्रैक्टिकल होगा और 20% थ्योरेटिकल होगा। थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत है इसके अंदर प्लानिंग के पार्ट में, बट मोस्टली 80% प्रैक्टिकल होगा। इसके अंदर हम लोग क्लाइंट के लिए शीट बनाते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। होता क्या है कि आप एसईओ तो पढ़ लेते हो लेकिन आपको पता नहीं होता कि मुझे रिपोर्टिंग कैसे बनानी है। सो अभी तो खैर मेरे थोड़ा कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट है तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, कुछ हैं। तो जब वो लोग रिपोर्टिंग के लिए बोलते हैं तो वो लोग का एक पूरा फॉर्मेट होता है कि मुझे इस फॉर्मेट में रिपोर्टिंग चाहिए, मुझे बताओ कि मेरे कीवर्ड कहाँ थे और कौन से पेज पे थे, क्या पोजीशनिंग थी। तो वो रिपोर्टिंग कैसे बनाते हैं क्लाइंट्स को और किस तरीके से देते हैं, वो हमने सीखना है। क्या क्या पैरामीटर्स हैं। एक टूल है जो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, वन टूल, टूल, राइट। इस टूल की मदद से हम लोग वो सारे रिपोर्टिंग निकालते हैं और क्लाइंट्स को भेजते हैं। तो ये टूल्स कैसे काम करते हैं, बिकॉज एसईओ में अगर आपको सिंपल एसईओ सीखना है तो वो आप एक वीडियो से भी सीख सकते हो आज के टाइम में, लेकिन उसको सीख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो यूज नहीं होता है इंडस्ट्री के अंदर। एट द एंड ऑफ द डे आपको इंडस्ट्री में जाके काम करना है, या तो आपको इंडस्ट्री में काम करवाना है, या फिर आप अपने बिजनेस को इंडस्ट्री में लेके जाके किसी और से काम करने के लिए बोलोगे। आइदर केस आपको रिपोर्टिंग, आपको टूल्स का इस्तेमाल करना और एग्जीक्यूशन आना ही चाहिए, बिकॉज उसी का ही फायदा है। दिस इज द टूल वंस यू पुट अप अ वेबसाइट, for example, just put up a website. I'll put Flipkart ले लेते हैं। Myntra ले लेते हैं, Myntra ले लेते हैं।
सो यहाँ पे अगर मैं इस टूल पे डालूँ, अभी देखिएगा स्टार्ट कर देंगे। सो ये इसकी पूरी की पूरी एसईओ रिपोर्ट निकाल के दे देगा। उस रिपोर्ट को किस तरीके से हमें कस्टमाइज करना है, किस तरीके से इकट्ठा करना है, बिकॉज ये एक्सेल शीट में अलग अलग शीट्स में होगा, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे। एंड ट्रस्ट में आपको इंडस्ट्री में जाके यही करना है। दिस इज व्हाट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने मिस देखा है बाकी जगहों पे। सो दिस इज द कोर मॉड्यूल का पहला पार्ट है। नेक्स्ट जो है दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको 2 मिनट पहले दिखाया, मैंने यहाँ पे टाइप किया मिंत्रा और यहाँ पे ऐड आ गया ईमेल पे टाइप के मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर पे बहुत ये रहा है, सेंड इन एक्टिव कैंपेन्स, बेंचमार्क, तो ये जो ऐड आ रहे हैं सबसे पहले गूगल से, तो चांसेस ऑफ 9% चांसेस है कि लोग इसके ऊपर क्लिक करें। राइट, सो इन दिस केस व्हाट इज होगा, हम इस पर कोर्स में सीखने वाले, राइट। सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो गाइस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, I'll open Facebook, I'll show you. थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है अभी। संदीप, क्या मेरी आवाज आ रही है गाइस? एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? प्लीज एनी मेरी आवाज जस्ट गिव मी। I'm breaking up, just give me 1 second. Okay? क्या आवाज आ रही है? Is my voice clear to you now? Am I audible clearly? Yes, everyone. Komal, what about Ishika ji? All right. क्या मेरी आवाज क्लियर है? ओके, डन। सो आई स्टार्ट नाउ, कंटिन्यू। सो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, सो वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू रन एड्स ऑन सोशल मीडिया। सो आई हैव मेनी अकाउंट एंड देयर आर मेनी क्लाइंट्स जिनके लिए मैंने ऐड रन किया है। एंड just give me 1 second. गाइस, ये देखिए फेसबुक का एड्स मैनेजर है। सो आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा कि अगर आपको फेसबुक पे ऐड चलाना है तो कैसे चलाना है।
so you'll have a practical knowledge. Guys, मैंने अपना कैमरा ऑफ किया है ताकि वॉइस क्वालिटी बेटर हो जाए, एंड आई होप कि बेटर हो गई होगी। प्लीज एक बार चैट में मुझे बता दे क्या अभी भी अच्छे से सुनाई दे रहा है, आवाज वॉइस क्वालिटी इज गुड। डन। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। सो ये आप देख रहे हैं फेसबुक पे हमें एक कैंपेन बनाना होता है। कैंपेन इज लाइक लाइक अ मॉडल, जो ऐड चलाने का मॉडल है। So we'll make a campaign, right? And सो यहाँ पे बहुत आसान है, क्रिएट कैंपेन पे जाके वी कैन क्रिएट अ कैंपेन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम टारगेटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ऐड चलाने का रीजन क्या होगा। फॉर एग्जांपल ब्रांड अवेयरनेस करके मैं चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों को मेरे ब्रांड के बारे में पता चले ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे मैं बजट डाल सकता हूँ कि मुझे कितना बजट डालना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे देखिए टारगेटिंग करने का मौका मिलेगा कि मुझे अपना ऐड किसको दिखाना है। तो यहाँ पे जाकर मैं लोकेशन टारगेट कर सकता हूँ, मैं कंट्री लेवल पे कर सकते हो। जैसे देख रहे हैं आप, इंडिया है। अगर मैं चाहूँ कि मेरा ऐड जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिखे, उत्तर प्रदेश टारगेट पूरा सिटी लेवल पे हो गया। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के में ना के अलावा सिर्फ एक सिटी में दिखे, लखनऊ में दिखे, तो मैं लखनऊ को टारगेट कर सकता हूँ। सिर्फ लखनऊ में दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि लखनऊ के आसपास 10 किलोमीटर में दिखे भी, तो वो भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं जहां चाहूँ एग्जैक्टली वहां पे अपने आप को दिखा सकता हूँ। मान लीजिए आपका एक हेयर सैलून है, या आप किसी के लिए जो काम कर रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक एरिया में है, और उसी एरिया में सिर्फ अपने आप को ऑप्टिमाइज करना चाहता है या उसके लिए ऐड चलाना चाहता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मोर ओवर आपके पास एज के हिसाब से टारगेट करने का मौका है, जेंडर के हिसाब से टारगेट करने का मौका है। डिटेल टारगेटिंग में आप इंटरेस्ट के हिसाब से, यार किसका इंटरेस्ट हो, जैसे मैंने बोला कि मेरा ऐड जो उसको दिखे जिसका जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट हो, कॉस्मेटिक्स में, तो अब उसको ऐड दिखेगा जिसका कॉस्मेटिक्स में रिजल्ट इंटरेस्ट है। और वो बंदा क्या लैंग्वेज, उसका फेसबुक का लैंग्वेज क्या है, उसके हिसाब से भी वी कैन टारगेट, राइट। तो हमारे पास डिटेल तरीके से टारगेटिंग करने का ऑप्शन है, जो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्रैक्टिकली सीखेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है। जब आपने मेरे अकाउंट लेवल पे देखा था, वी हैव रन फॉर मेनी अकाउंट्स। हमारा हमने मैंने कजारी के लिए, कजारी टाइल्स के लिए भी हमने काम किया है। सो समाजवादी पार्टी के लिए भी हमने काम किया है। सो वी हैव डन अ लॉट गुड वर्क, एंड आई थिंक हम जो एक्सपोजर दे पाएंगे आपको इसमें, किस तरीके से एडवांस टेक्निक्स यूज करनी है, स्पेसिफिक लोगों तक कैसे पहुंचना है, तो वो आपको डिटेल तरीके से कोर्स के अंदर समझाया और बताया जाएगा। डन। जो नेक्स्ट कोर्स मॉड्यूल है, हाय अंकिता, अब थोड़ा सा लेट है। ओके, चला गया। एनीवेज, ऑलराइट, जो नेक्स्ट कोर मॉड्यूल है उसका नाम है ईमेल मार्केटिंग। सो गाइज, आप जानते हैं ईमेल मार्केटिंग इज व्हाट। सो बेसिकली ये जो आपको ईमेल्स आते हैं कि भाई नया ऑफर आया है अमेजोन का, नए प्रोडक्ट्स हैं, उस पे ये परचेज कर लो, खरीद लो, यहाँ तक कि मुझे लगता है डिजिटल पाठशाला के कुछ मेल्स भी आप लोग को आ रहे होंगे। सो ये जो मेल भेज के कन्वर्जन करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं, कि लोगों को मेल भेज के अपना सामान परचेज करवाना। दैट इज कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग, राइट। तो वो पार्ट हमने यहाँ पे सीखनी है कि वो कैसे होती है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरीके से ईमेल्स डिजाइन होते हैं। मैं आपको इसका बैकएंड तो नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, जल्दी से इसको रैप कर सकते हैं। बट मैं आपको गूगल एनालिटिक्स का बैकएंड दिखा सकता हूँ। सो नेक्स्ट जो एडवांस मॉड्यूल है उसका नाम है वेब एनालिटिक्स, गूगल मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स, राइट। तो गाइज, होता क्या है कि अभी मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आए, या आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आए, लेकिन वो आपकी सोशल मीडिया या आपकी वेबसाइट पे आके क्या करते हैं, कौन से पेज को देखते हैं, कैसे करते हैं, अगर हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी तो हम अपनी वेबसाइट के प्लेटफॉर्म को और बेटर कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ बैकएंड हम कैसे एनालिसिस करते हैं। मैं एक गूगल एनालिटिक्स है मेरे पास एक वेबसाइट का, I'll just show that to you.
So I can show you for one of my website, मेरा एक blog है, मैं उसका दिखा देता हूँ आपको, है ना, कि बैकएंड में बैकएंड कैसा दिखता है, ट्रैफिक कैसे दिखता है। ये मेरा नहीं है, दिस इज बेसिकली अ डेमो अकाउंट, दिस इज माय वेबसाइट, राइट। सो गाइस, ये राइट नाउ यूजर दिखा रहा है, ये एक हफ्ते का यूजर दिखाता है, एक हफ्ते में कितने यूजर आए। सो ये पूरा वेबसाइट का ऑडियंस का एनालिसिस है, ये लास्ट वीक का है, ये बैकएंड है, इसको देख के हम लोग सारा का सारा एनालिसिस करेंगे। सो ये बैकएंड ये बता रहा है कि पिछले एक हफ्ते में मेरे पास इतने यूजर आए हैं, राइट। तो ये कौन मॉड्यूल है, क्यों मॉड्यूल है? अगर मान लीजिए कोई कंपनी आपको बोलती है कि मैं चाहता हूं कि मैं ये देखूं कि मेरी वेबसाइट पे पिछले एक साल में कितने यूजर आए हैं, कितना सामान खरीदा है, कितना क्या है, कितना नहीं है, वो सारा डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये यूजर्स का है, ये बाउंसर, ये पूरा डेटा आता है, राइट। बड़ी बड़ी कंपनीज के पास ऑब्वियसली बहुत सारा डेटा है, मेरे पास भी कुछ कंपनीज का बैकएंड है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। इट्स अ सिंपल ब्लॉग जो मेरे पास है, तो मैं उसका आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रैफिक किस तरीके से दिखता है। एंड देयर आर मेनी पैरामीटर्स, यहाँ पे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने लोग कहाँ से आए हैं, फेसबुक से कितने लोग आए, गूगल एड्स चला के कितने लोग आए। तो इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे को कौन सी टाइप की मार्केटिंग में कितना इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये सारा का सारा हम ट्रैक करके क्लाइंट को बता पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा किसी और टाइप की मार्केटिंग में ये चीज आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज मीडिया बाइंग एंड प्लानिंग। तो गाइज, ये जो टॉपिक है ये आपका एडवर्टाइजिंग वाले टॉपिक से कनेक्टेड है, बिकॉज मीडिया बाइंग में क्या होता है, हम लोग कलेक्टिवली एड्स एड्स को खरीदते हैं और गूगल एड्स में भी सीखते हैं, तो ये उससे कनेक्टेड है, उसी में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को मोर लेस डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम लोग ई कॉमर्स मार्केटिंग सीखेंगे, ई कॉमर्स मार्केटिंग कैसे होती है, क्या होती है। मेरा एक वेबसाइट चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ ई कॉमर्स पे। देयर आर टू वेबसाइट दैट आई एम रनिंग। मेरा एक वेबसाइट है makepethhappy.com, दो है एक्चुअली में, बट मैं आपको, एक रेडी हो रहा है, एक रेडी हो चुका है। makepethhappy.com ये दिखाता हूँ। सो दिस इज ये ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग आपने सुना होगा, ड्रॉप शिपिंग में जो प्रोडक्ट्स है, सो दिस वेबसाइट से आई एम रनिंग फेसबुक एड्स, एंड जो I'm earning approximately $2,000 to $3,000 per month only by running ads on Facebook. मेरा investment is approximately $1,000 and 2 to 3 times return आ रहा है। तो मैं प्रोडक्ट को ओन भी नहीं करता हूँ, मैं प्रोडक्ट को सेल भी नहीं करता हूँ, सब कुछ जो है वो दूसरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है अली एक्सप्रेस, वो करता है। मैं सिर्फ एड चला के लोगों को अपना सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग पे हम लोग कैसे वेबसाइट बनाएंगे, ये शॉपिफाई पे बनी है, कैसे बनाते हैं, क्या उसके स्ट्रेटजीज है, मैं आपको बैकएंड दिखाऊंगा अपना, एंड आई विल टेल यू द सीक्रेट मेथड्स जिससे मैंने इस सेल्स को अक्वायर किया है, कौन से टाइप का कैंपेन चलाना है। बिकॉज मोस्टली क्या है, जब मैं अब यहाँ पे कैंपेन दिखा रहा था, लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करने के लिए ब्रांड अवेयरनेस या रीच या ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं। नो, दैट्स रॉन्ग। द राइट इज कन्वर्जन कैंपेन, आपको कन्वर्जन कैंपेन चलाना है। तो ये जो सीक्रेट तरीके हैं और एडवांस चीजें हैं, ये हम जब कोर्स करेंगे ई कॉमर्स मार्केटिंग, तब हम सीखेंगे कि शॉपिफाई पे हमें कैसे करना है। साथ के साथ वो कॉमर्स जो कि वर्डप्रेस का स्टोर है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का, हम इसके ऊपर भी काम करेंगे और सीखेंगे कैसे करना है। नेक्स्ट इज super special modules. So there are two topics which is called growth hacking. ग्रोथ हैकिंग क्या होता है? ग्रोथ हैकिंग इज बेसिकली बिजनेस के ग्रोथ को बढ़ाना अनकन्वेंशनल तरीके से, मतलब जो प्री डिफाइंड तरीका होता है। जैसे प्री डिफाइंड तरीका क्या हुआ कि मान लीजिए आपको एक मोबाइल सेल करनी है, सिंपल सा रूल क्या है भाई, मोबाइल सेल करना है, उसका एड चला और मोबाइल आपका बिक गया। मैं कुछ और उसके अंदर कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं मोबाइल को सेल करूंगा, लेकिन मोबाइल सेल करने में जो मैं एड्स में पैसा खर्चा करूंगा, उसके बदले में लोगों को कैशबैक दे देता हूँ, राइट। तो ये जो ओला उबर की बात करते हैं, जैसे आपने ओला का देखा होगा, ओला ने क्या किया कि भाई आप अपने अपना राइड बुक करो और अपने फ्रेंड को रेकमेंड करो। अगर आपका फ्रेंड भी राइड बुक करता है तो आपको ₹200 की राइड फ्री मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केटिंग मुझे एड चला के करनी थी, वो मेरे बदले, उसके एड पे पैसे खर्च करने के बदले, जब मैंने वो कस्टमर को दिया तो कस्टमर मार्केटिंग करने लग गया। मतलब
आपने इंस्टॉल करा, आपने अपने फ्रेंड को बोला सुन ना, हाँ ओला इंस्टॉल कर, ओला में तेरे को डिस्काउंट मिलेगा। सो जो मुझे मार्केटिंग पैसे खर्च करने पड़ते हैं ऐड के लिए, वो मैंने पैसे, जो उस ऐड के पैसे हैं, वो मैंने यूजर को एज अ इंसेंटिव, एज अ रिवॉर्ड दे दिया। तो यूजर ने खुद मेरी मार्केटिंग करी। तो ये अनकन्वेंशनल तरीका हुआ मार्केटिंग करने का, ग्रोथ को बढ़ाने का। और इसका रिजल्ट क्या था, आप देखते हैं आज हम, आप और हम ओला पे डिपेंड है, उबर पे डिपेंड है, राइट। लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने ये फॉलो किया तरीका। तो ऐसे कुछ बहुत सारे तरीके हैं, करीब 200 तरीके हैं टोटल। कुछ क्लास में आपके डिस्कस किए जाएंगे, बाकी आपको डाउट्स के रूप में समझाया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग ग्रोथ हैकिंग करके प्रोडक्ट्स को, ब्रांड्स के लिए ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। सो मैंने इसके ऊपर काफी काम किया है, तो आई एम होपफुल कि ये अच्छा रहेगा आपके लिए मॉड्यूल। नेक्स्ट इज लीड जनरेशन। तो कौन से एडवांस तरीके हैं लीड जनरेशन करने के, राइट, क्योंकि हर ब्रांड को लीड चाहिए, राइट। तो हम लोग किस तरीके से ब्रांड के लीड जनरेशन के कॉन्सेप्ट को, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, उसमें एडवांस स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, बिकॉज हम लोग लीड जनरेशन के ऐड चलाते रहते हैं। तो हमारे को ये देखना होता है कि विच आर द एडवांस स्ट्रेटजी जिसकी मदद से हम लोग क्लाइंट के लिए लीड जनरेशन चला के दें। इसमें गूगल ऐड सिस्टम, there is some disturbance. Alright. सो बेसिकली मैं ऑफिस में हूँ, तो ऑफिस में चाय बन रही है, तो वो अदरक को कूटने का काम किया जा रहा है। एनीवेज, आई जस्ट मूव अहेड। ऑलराइट। सो लीड जनरेशन करने के और कौन कौन से एडवांस तरीके हैं वो हमारे को सीखने हैं। सो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। सो प्राइमरली अभी हम एक बहुत बड़े ब्रांड के, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उसके लिए हम काम ऐड चला रहे हैं। तो उनके लिए हमें लीड जनरेशन करना था। तो बेसिकली वो लोग कार को सेल करते थे, सेल कार, राइट। कार का काफी वो है। तो जब हम उनके लिए ऐड चला रहे थे, तो ऐड चलाते टाइम हमारे पास इशू ये आया कि उनका एक मॉडल है, उसके बहुत कम लीड्स आ रहे थे। तो फिर हमने उसका रीजन फाइंड आउट किया। रीजन क्या था उस मॉडल का? रीजन क्या था कि उसका जो एड का इमेज था वो बहुत एक सिंगल इमेज था। तो हमने उसके मल्टीपल इमेजेस को लगाया। जब मल्टीपल इमेजेस, इंटीरियर, एक्सटीरियर, वो स्टीयरिंग स्टीयरिंग आजकल आपने देखा है स्टीयरिंग का पूरा स्क्रीनशॉट डालते हैं, और टेल लैंप्स का, तो अचानक से उनकी लीड जो है 3 टाइम्स बढ़ गई। जहां पे पहले 5-6 लीड्स आती थी, अब दिन की 25-30 लीड्स हो गई। तो किस तरीके से लीड जनरेशन बना सकते हैं, किस तरीके से ऑफर्स को नए तरीके से डाल सकते हैं, ऐड में क्या वर्कआउट कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे लीड जनरेशन के मॉड्यूल। राइट। फाइनली हम लोग आपके फेवरेट और हमारे फेवरेट मॉड्यूल मनी मेकिंग मॉड्यूल्स में आते हैं, राइट। तो मनी मेकिंग मॉड्यूल में जो पहला मॉड्यूल है जो हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। क्या नाम है? एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करना और बदले में कमीशन लेना। क्या लेना? कमीशन। सो मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है जेवीजू, राइट। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं आजकल ब्लॉग लिखते हैं कि मैं बहुत अच्छा ट्रैफिक लेके आता हूँ, या फिर मैंने बहुत अच्छा काम किया है, राइट। एक सीक्रेट प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं अभी काम करना जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका नाम है लॉस्ट फॉल्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, बिकॉज मैं जस्ट इस पे काम करना स्टार्ट ही कर रहा था। सो गाइस, सो इसके ऊपर बहुत बहुत आसान है। आपको आपको अकाउंट बनाना है, राइट। मैं लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ। सो आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। क्या करना है? कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। तो इसके लिए भी स्ट्रैटेजी है, राइट। एक टूल है जिसका नाम है गूगल ट्रेंड। क्या नाम है? गूगल ट्रेंड। मैं हमेशा इसका इस्तेमाल करता हूँ प्रोडक्ट को डिसाइड करने के लिए। तो गाइस, गूगल ट्रेंड क्या है कि गूगल पे किस चीजों के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, ये उसका दिखाता है आइडिया, कंट्री लेवल पे। राइट नाउ जैसे यहाँ पे यूएस है, मैं देखिए आपको यहाँ पे इंडिया करके दिखाता हूँ। सो इंडिया में लोग किस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं वो दिखा देगा ये। कोरोना वायरस ये तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में चल रहा है। आज अभी तक रियलमी 7 प्रो के 2 लाख से ज्यादा सर्चेज है, राइट। ये एक है फ्री फायर। मेरे ख्याल से शायद ये कोई गेम होगा, फ्री फायर।
बिकॉज अभी एक बहुत पॉपुलर गेम है जो जिसने बहुत से हमारे नौजवानों को घर पे बिठा रखा था, पबजी नाम है उसका, वो बंद हुआ है। तो शायद उसका ये ऑल्टरनेटिव है। सैफ अली खान के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, सीटेट एडमिट कार्ड के बारे में 50,000 से ज्यादा सर्च कर रहे हैं। नीमार, ये एक फुटबॉलर है, बहुत ज्यादा अड़ियल है, इनके बारे में यूनाइटेड नेशन, रागिनी द्विवेदी कोई होंगे, ड्वेन जॉनसन, द रॉक, इनके बारे में सर्च कर रहे हैं। अच्छा, नॉट ओनली दैट, अगर कोई भी टर्म आपको सर्च करना है, प्रोडक्ट चूज कैसे करते हैं, मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट सेल करना है। ये किस बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आप या तो वो चूज कर सकते हैं, या जो ज्यादा बिकता है आप वो चूज कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, मैं एक कीवर्ड डालता हूँ, आई लैश मस्कारा। I don't know if spelling is right or not, but let's see. Right? Eyelash mascara. ये आई शेडो, मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। राइट? तो आईलैश मस्करा जब मैंने सर्च किया, तो मैं मुझे स्पेलिंग देख लेनी चाहिए। आई थिंक शायद स्पेलिंग में कोई गलती गलती हो, पहले तो ये है। जस्ट जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम प्रोडक्ट डिसाइड कैसे करते हैं। सो दिस इज आईलैश मस्करा। ऑलराइट, डन। सो आईलैश मस्करा का ये बता रहा है कि भाई अप्रैल में, दिसंबर में क्या ट्रेंड है, 25 से 30 लोग इसको डेली सर्च करते हैं, तो हो सकता है। इसके अलावा देखिए, ध्यान से देखिएगा, MASCARA मस्करा। अब ये देखिए, सिर्फ मस्करा का आइटम कितना है, कितने सर्चेज है, मेरे ख्याल से 200, 300, 200, 500 सर्चेज दोनों हैं। तो इन दोनों में से मेरे हिसाब से मस्करा इज अ बेटर प्रोडक्ट सेल करने के लिए, बिकॉज लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं इसके बारे में। राइट, कंट्री लेवल पे। अच्छा, कहाँ पे सर्च करें ये भी दिखाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे कम है। राइट, अभी यही चीज अगर मैं थोड़ा सा इसको कंट्री चेंज कर दूंगा, बिकॉज मैंने कंट्री जो है, रीजन जो है वो चूज किया था इंडिया। राइट, इफ आई विल चेंज द कंट्री, द रिजल्ट कैन बी डिफरेंट। सो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। अब जो प्रोडक्ट हमने डिसाइड कर दिया, हमारे को प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, हम चाहे जेवीजो पे जाएं, हम Amazon पे भी जा सकते हैं, Amazon के एफिलिएट को सेल, Amazon एफिलिएट, Amazon के एफिलिएट प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं। राइट, तो कैसे प्रोडक्ट को डिसाइड करना है, कैसे चूज करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे सेल करना है, क्या तरीके, ये सारे के सारे हम सीखेंगे इस एडसेंस वाले, सॉरी एफिलिएट वाले मॉड्यूल के अंदर। राइट, द नेक्स्ट टॉपिक इज गूगल एडसेंस एंड ब्लॉगिंग। सो गाइस, ये तो मेरे ख्याल से आई गेस सभी को पता होगा। एक सिंपल सी वेबसाइट है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सबने यूज किया ही होगा, इसका नाम है स्पीड टेस्ट, speedtest.net। आई गेस सभी ने किया होगा। जब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं गाइस, तो आपने एक बात नोटिस की होगी, आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पे ऐड आता है। देखिए देखिए, ऐड आ रहा है, स्क्वायर स्पेस का ऐड आ रहा है यहाँ पे, नीचे भी किसी का ऐड आ रहा है। right? ये जो ऐड आ रहे हैं, ये ऐड पे किसकी वेबसाइट पे आ रहा है, स्पीड टेस्ट की वेबसाइट। मान लीजिए आप और हम में से कोई स्पीड टेस्ट वेबसाइट का ओनर होता, तो इस ऐड को दिखाने के लिए हम लोग पैसा चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? पैसा। तो ऐसी बहुत सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं, जो भी हम सर्च करते हैं, जहां पे हम जाते हैं तो हमारे को ऐड दिखता है। राइट, तो इस तरीके से अपनी वेबसाइट पे हम लोग ऐड कैसे डालें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक हमारे, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये ऐड आ रहा है, और नीचे ऐड आ रहा है, बहुत सारे ऐड्स आ रहे हैं। राइट, और भी हम जाएं तो टाइम्स जी न्यूज पे जाएं, सब पे ऐड आते हैं। राइट,
ये देखिए यहाँ पे एड्स बाय गूगल, राइट। तो ये भी देखिए एड्स बाय गूगल। तो हम अपनी वेबसाइट पे इस तरीके से ऐड दिखा के पैसे कैसे कमा सकते हैं, हाउ कैन वी अर्न मनी फ्रॉम showing by showing this kind of ads on our website। तो ये हम सारा का सारा लेखा जोखा यहाँ पे बना सकते हैं। इस मॉड्यूल में आपको वेबसाइट पे एडसेंस का अकाउंट अप्रूवल कैसे कराते हैं। जैसे मेरे पास एडसेंस का अकाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई हैव मल्टीपल अकाउंट, बट मैं आपको एक दिखा देता हूँ जो मैं दिखा सकता हूँ। वन ऑफ माय अकाउंट, उसमें कुछ अर्निंग भी है बट बहुत पुरानी है। और गलत अकाउंट चूज कर लिया, आई एम सो सॉरी। सो दिस इज टोटल बैलेंस इज 10। तो दस डॉलर्स मैं इसके ऊपर एड्स मतलब $10 कमा चुका हूँ अभी तक इस वेबसाइट से। कुछ वेबसाइट है जो इसके अंदर डली हुई है, दिस एंड दैट। सो ये एडसेंस का अकाउंट है, इसमें हम वेबसाइट को कैसे वेरीफाई कराएं, कैसे ट्रिक्स हैं कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करें, ये सारे के सारे आपको इस मॉड्यूल में शेयर किया जाएगा, जिसका नाम है एडसेंस एंड ब्लॉगिंग। डन। फिर हम बात करें टूल्स एंड सॉफ्टवेयर की, तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 20,000 से ज्यादा रुपीज के वर्थ के टूल्स आपसे शेयर किए जाएंगे, जिसमें जिसमें कुछ थीम्स होंगी जो वेबसाइट डिजाइन करने में हेल्प करेंगी। मैंने आपको बताया एसईओ के टूल्स शेयर किए जाएंगे, हैशटैग कैसे निकालें, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हैशटैग का एक टूल दे देता हूँ आपको, वेरी इंटरेस्टिंग। गिव मी 1 सेकंड। सो मैं वेरी इंटरेस्टिंग टूल शेयर करता हूँ आपके साथ। Right tag. This is the tool, right tag. This is one of the best tools for hashtag analysis and hashtag research. तो guys, इस तरीके के टूल सिखाए जाएंगे आपको। कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसका आपको प्रिविलेज एक्सेस भी मिलेगा, राइट। सो उसके यूज करके आप लोग जो है अपने मार्केटिंग जब कैंपेन्स को चलाएंगे तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट, सो ये है हमारे पास, एंड लेट्स मूव अहेड नाउ। साथ के साथ आपको टोटल 14 सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, जॉब प्लेसमेंट की गारंटी रहेगी, देयर विल बी अ कोऑर्डिनेटर जिससे आप बात कर सकते हैं, दे विल असाइन यू कि आपको वहां पे जाके इंटरव्यू देना है, कहाँ कहाँ पे इंटरव्यू देना है वो आपको बताया जाएगा। लेकिन ये है कि भाई इंटरव्यू देने के लिए तो देखो आपको जाना पड़ेगा, वो हम नहीं दे सकते, बट अदर देन दैट इंटरव्यू तक पहुंचाना का काम हमारा होगा, राइट। नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 सर्टिफिकेट दिए जाएंगे आपको, राइट। सो दिस इज द टीम। Rajendra Rawat is a very interesting guy, प्रोफेसर एंड मार्केटिंग गुरु है। गुंदीप आपके साथ होंगे। द एंटायर पैकेज इज अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज का पैकेज है, एंड आई गेस मोर देन डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स चूज करें। सो इट वुड बी 2 to 3 months के क्लास का टाइमिंग है टोटल, एंड जॉब प्लेसमेंट के साथ है, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। अगर आपका क्लास मिस हो जाएगा तो आप उसका बैकअप ले सकते हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल रहेगी, चाहे आप 4 साल बाद यूज करना चाहें तब भी रहेगी, बट अगर आपने मिस किया है तो आप चाहें तो लाइव बैकअप भी ले सकते हैं, वो भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, राइट। सो गाइज, आई गेस इसी के साथ मेरा डेमो खत्म होता है। अगर आपके कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई डेमो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। I can interact live with you now, and I'm hopeful कि आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे, राइट। राइट, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, जल्दी से। क्या कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स हैं आपके पास? एनीवन कुछ पूछना चाहेंगे? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आई गेस मैं प्रेजेंटेशन ऑफ कर रहा हूँ। संदीप, आर यू देयर प्रेजेंट? आप प्रेजेंट है संदीप?
Yeah, Diptanshu, I'm here itself. Yeah. So they don't seem to have any questions right now. No issue. I'll be taking the follow up with them. No worries about it. Okay, perfect. Thank you for your time. I hope आप लोगों ने enjoy किया वो demo. I'll see you Yeah, guys in the next thanks for one. the time as well, Diptanshu. Okay. Perfect. Take care. Bye bye.